अभी नहीं है अभी नहीं हाँ बढ़िया व्यवस्था है। it's it's एक तो आप अच्छा स्पीकर चालू है चालू वही था अच्छा पे पहुंचे सब 500 लाभ दै छै वो हमर बैग लग ओ छोटका बैग नहीं छै के तो हाँ वह
हेलो। लगा हुआ था, लगेगा नहीं इसमें। हेलो। लिखा हेलो। 300 400। Hello. हाँ अमलेश सर, Good evening, sir. गुड इवनिंग। यू आर रेडी? Absolutely, sir. प्लीज शेयर योर Should we पीपीटी start? वन। You just share your Okay, PPT I'm one. sharing. I'm sharing it. उनका कर लो पश्मीना हाँ 9699 एक वीडियो मैंने कल चला देखा Yes. देखो मोटो This पर is एगो 6250 so. It's time. I welcome all the participants in this 29th training. A renowned resource person, Mr. Amlesh Kumar. I'm requesting you to kindly start the session. Thank you, Himanshu, sir. And good evening, everybody. As sir introduced me, I'm a resource person for today's online session. And next 1 hour, we are going to talk about a very special pedagogy, that is the storytelling in a classroom. I believe that people are able to see the screen, and even the audio is very clear. So your response I'm waiting for. Am I audible? Yeah. You are audible and screen also visible, sir. I'm sorry for the late Okay. entry. Good evening, ma'am. Welcome to this training. A wonderful trainer and wonderful Thank you. teacher. And he knows that that wonderful teacher is required. Firstly, that person only can take the wonderful training. On behalf of the Aryavarta Sahodaya School Complex, I welcome you, sir, and all the participants for this pedagogy, that's storytelling. How can make the class more interesting through storytelling? Welcome, Amlesh, sir. Everything is visible. You can start. Okay. Yeah. Thank you for appreciation. And even these appreciations are actually increasing the expectations of the all the trainees. So I'll try my best to justify the topic, and I hope it will be very much fruitful session there for all. So let's begin there with the this topic, storytelling pedagogy or storytelling in a classroom. Before going there too, let's recall some stories when we people were not getting a formal education. There, that very time, our parents were used to tell stories, and through the stories, they were giving us some life lessons. Right. Later, that story became one of the pedagogy there to teach the students, and it was found a very effective teaching learning method even. So, participants, I believe that you might have experienced that so many information that has been taught by your parents, some elderly people, they're in a very early age when you were not getting formal education. So you learn a life lesson through the stories. I'm telling you that sometime even the parents were giving a warning there to the child, and they were just sharing some scary stories that you don't go, otherwise you will be in a big trouble. Once there was a child, and child was not listening to the parents, and then the child suffered a lot, and that suffering was giving a lesson there to the other. So story is a very important uh, important pedagogy there for the creating interest to the learners. Okay, so
Let's begin there with some formal thing about this storytelling. What is storytelling pedagogy? Okay, so the question is here, and we are having some formal information on this question. Okay, so what are these all? Let's start. Storytelling. Just a second. Not quite sure how to help you with that. Okay, let me. Okay. Okay. So storytelling pedagogy is a teaching learning approach. Okay. So teaching learning approach that we are a part of it. Okay. As a faculty there in this teaching world, we are sometimes we are teaching, sometimes we are learning. So entire process then in our area is called teaching learning. All right. We are a part of it as a teacher. We are the imparting the educations, and we are receiving the education as well. So just because of this entire process is called the teaching learning approach. Okay, so this pedagogy uses stories. Okay, stories that could be real one. All right, to some um, real stories that we are sharing. Okay, and some fictional stories are there. We'll give we'll see some examples. All right, and then we'll discuss that some fictional stories were also very much helpful, giving the information and teaching them. Okay, so some personal experiences in a form of story teacher can share if the personal story is having something to teach. Okay, something to impart the information. uh, a child, that child was a very uh, weak there in memorizing things, and then the referral methodology was used by the teacher. Through the story, teacher taught, and then through the story, child was recalling the content which was not being easy for him or her to recall. So stories are very effective there in the mm, teaching learning process. Now come there to this method is very much engaging one. All right, seeking the attention of the children. If you have started a story, then all the students of your class, they will be very much interested to listen. All right, so this eagerness to listen a story, that will be very much helpful, because through that attention, okay, if you are getting attention of your students, and through the story, if you are giving some valuable information, that will definitely remain because their attention was very much engaged in that. Okay, so explain the concept through the story, that will be much interesting and attention seeking also, because general issues there with the class, that students are not taking attention, not paying attention there to the topic. So better to incorporate the topic there with the short stories. Through that, it will be very much helpful. Instead of relying only on the lecture, which is always being monotonous, always see 1 hour that I'm going to give a lecture, that is also going to be very monotonous. Although we are sitting on the different aid, all right, there is a screen, and even we are very much matured and a bit elder people. So we are we are being focused because we are here to learn. But in early age, students were not that much smart to uh, listen the thing which is not interesting. All right, to make information interesting is a responsibility there to the teacher. Otherwise, nobody is going to listen to you if you are speaking. And if your speech, your lecture is monotonous, it's one-sided, and it's not having anything interesting in it, only information is there, then nobody will listen it, and your objective will never be fulfilled to pass the concept there from you to your students. So you have to develop this pedagogy, leverages the power of narrative,
to make lesson meaningful, relatable, and memorable. These three terms are very important. What this pedagogy is giving us, and that actually making our lessons meaningful. If we are teaching through the story, then definitely our lesson will be more meaningful, relatable, and the memorable also, because the students would be very much paying the attention and they will be very much connected there to you in your class. Okay, let's move there to the next. So what are the benefits? We are going to talk about the benefits of this story-based learning. All right. So one benefit is here. So whether you use the traditional classroom or the virtual learning spaces, school can leverage the story-based learning and offer the following benefits. What are the benefits actually we are going for? Okay, so first benefit is the engagement. You may also add some benefits there to the chat box if you are adding that what could be the benefit, and you are personally feeling that this pedagogy or this methodology is adding something in your lesson. So I'm getting it. So you may type, I may read some of the benefits that the story-based learning is giving to us. So far, no one is typing. Okay. So, yes. So only that people are being in the, okay, they're not typing any information related to that, I believe. Okay. So, all right, no issue. So engagement is the first benefit. All right. If you are starting your lesson with the story, your student will be very much engaged. They will be very much attentive. And the second is retention. Once you have taken the attention of your student, it will retain there for whole period if the methodology is the story. Okay. So engagement and retention. First, the child will be very much engaged. Child will think about the characters. Child will sometime, whenever we are watching the movie, sometime we are being very engaged. Sometime we are being a character there in the movie or there in the story. Sometime we are putting us there in that particular character and then analyzing entire story. This is the engagement. We are very much involved there in that. So if you are teaching through the story, your students will be well engaged through the characters. They will enjoy these all kind of things. Okay. If a child is watching Chota Bheem, sometime that child is relating that he is also a kind of Chota Bheem. So that is showing engagement is very much involved then. And retention means whatever is there, that is, the child is not going to lose the attention. That attention will be continued throughout the stories. And through this story, you are imparting the educations. It's not a barely story of entertainment. Okay, it's a Ajit Kumar is saying that comprehension. Very good, Ajit ji. Comprehension is also a benefits that is giving there to the, because while you are sharing the stories, you are using a lot of things, and that is teaching. That Rashmi Kumari is saying storytelling makes it very interesting and all. Very good, Rashmi ji. Be a participant, all right, active participants. And now come there to the comprehension. Very good that it was added. The comprehension, and after comprehension, this is the critical thinking. Okay. See, critical thinking, if in some time, I think we all have heard the story of Bikram and Betal. All right. And what? That Bikram and Betal, where the Betal was sharing the story there to the Bikram. All right. And at a certain circumstance, that Betal was leaving a big question there. And
provoking Bikram to give an answer critically. That one was a situation in that the Bikram was forced to think critically to give the answer to clear the situation which was being created in the story of this Bikram and Betal. Bikram Betal, so many morals that means value educations was actually shared by the Betal to the Bikram. All right, that one was the storytelling. It's a big storytelling, and it was being very much taught by this Bikram Betal, the stories, and so many values are being transferred through that story. So critical thinking, if you are giving a situation there in your story and asking to your children that you just give what could be the other way to dealing the problem or dealing the issues, what the character should do here. All right, just stop your story and give this chance to the students to suggest some way to help the characters if character is facing some problems there too. Okay, so critical thinking is also very important thing there for the students to develop, and storytelling is a very much helpful method to this. Now empathy. Okay, so see, you might have seen even, or you have experienced even with you that while you were watching some kind of stories and you were feeling very much connected or very much being emotional, you were feeling the pain of a sufferers, and you were putting there, all right, you were putting yourself there as a sufferer, and then you were realizing the pain and the suffering of that feeling is the empathy. All right, so if you are giving very much food there to the any hungry person and helping that particular is that could be a result of a sympathy. But how that hungry people is feeling there that very time, which type of emotional jerk that person is feeling while he was not getting anything to eat, that pain, if you are realizing by putting yourself there in the shoes of that particular person, it's the empathy. All right, so while you are sharing the story, you just tell your students to put their shoes of a characters and feel the pain, the sufferings, and these all kind of things, and how that could be changed, and that person will be a very pure soul if the person is having empathy as a one value traits there in their personality. That this story is a very much helpful in creating empathy there in the peoples. The next is the perspective taking. All right, so one more thing that stories are helping us to perspective taking. So in any stories that the so many perspectives are there, that so many paths, so many ways, so many areas that could be opted there by the characters, so that story may give a different type of perspectives there to the children, and they could opt it in their own life, so they could learn it from the stories as well. Okay, so next one is the language development. All right. So stories that could be narrated definitely using languages. If stories are नानी की कहानियां, दादी की कहानियां, ये कहानियां, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कहानियां इम्पैक्ट डालती थी, और ये लैंग्वेज के हिसाब से अंजू कुमारी प्रसाद जी बोली हैं कि लिसनिंग स्किल्स भी वेरी गुड, ये एक बड़ा अच्छा है कि लिसनिंग स्किल तो ये डेवलप होता है, ठीक है ना, और ये हेल्प करता है इंगेजमेंट और रिटेंशन के लिए। ये अगर स्किल है किसी के पास तो वो इंगेजमेंट और रिटेंशन उसका बहुत अच्छा होगा, वो चीजों को सुनेगा। वेरी गुड मिस, सॉरी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ one more benefits of story based lab. All right, because the stories are being shared in a different languages, and as your students are listening, and then
they are framing their own phrases, they are learning the words, and even the modulations of the flow in which you were sharing stories, that modulations they are learning, they are copying it, sometimes imitating it. You might have seen the young children are coming there to the Rashmi Kumari, Miss is very good. You are participating, Miss, and let me read it. So it was not coming now. No issue. It's very good, Miss, that you are participating throughout. Okay. All right. So language development. So at some time you might have seen that children are coming there to the school, from the school to their home, and they're imitating like a teacher, that this Rashmi Miss was telling that this teacher was behaving like that, and they are repeating the same language even they were not knowing the meaning, and imitating the way, the flow, sometimes scolding, sometimes being serious, sometimes being very, very polite, as the Miss was there in the class. So language development is also being there, a part of this storytelling. Okay, so the next, creativity. Creativity. So story is, means this one story is having different type of threads. All right, that one option, the one thread, like so many stories that never ends. Okay, and it means beyond that story you can also create some more stories there in that. So if you have started this way, okay, and even it's a giving some I watched one um, advertisement of mentors. All right, the early civilization, that mentors, one person was a very much struggling, and accidentally that got her mentors, और वो खाने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है, और फिर वो लकड़ी के लट्ठे से एक गधे को जोड़ करके एक काट बना लेता है, ठीक है ना, और वो काट का एक इन्वेंशन कर लेता है, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलती है, मतलब वहां दिखाता है कि कैसे क्रिएटिविटी आती है, कैसे, हालांकि ये सारा क्रेडिट वो मेंटोर्स को दे देता है, बट ये क्रिएटिविटी है। और एक चीजों से हम कई बार, क्रिएटिविटी का मतलब नहीं कि सारी चीजें हम ओरिजिनलिटी, हम कई बार उसमें उसको मॉडिफाई करके किसी एग्जिस्टिंग को बेटर कर देते हैं अपने क्रिएटिव तरीका से। सो दैट इज ऑल्सो, अगर हमारे स्टोरी का कैरेक्टर कुछ ऐसा करता है, और हमारा बच्चा बताता है कि अगर ये कैरेक्टर थोड़ा ऐसे नहीं करके ऐसे करता तो ये ज्यादा बेटर होता। कई बार हम भी सिनेमा में बहुत देखते समय बहुत क्रिएटिव होते हैं, जहां लगता है कि यहाँ पर ये कैरेक्टर ने गलती कर दी, ये हीरो ने गलती कर दी, यहाँ इसके जगह कर अगर ऐसा कुछ कर लेता तो वो ज्यादा बेटर होता। दैट इज द क्रिएटिविटी, एंड वी आर बीइंग एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरी टू गो देयर इन अ क्रिएटिव वे। Now, the next is the cultural awareness. हाँ, stories are sharing the different culture. अगर मान लो यहाँ बैठे हम अरेबियन नाइट्स की बात करें, तो अरेबियन नाइट्स, the culture there in the Gulf and the Arabs, we are getting it through that. Okay, Arabian Nights was sharing the culture which was not a part of our culture, but we go. हम कई ऐसी स्टोरीज हैं जिससे हम दूसरे कल्चर्स के को अवेयर करते हैं। तेनाली रमन, दैट वन वाज द साउथ कल्चर, सो वी पीपल हैव गेटिंग के, हमको वहां के खाने के, उनके स्टोरीज में साउथ इंडियन डिश, साउथ इंडियन तरीके की चीजें सारी मिली तेनाली रमन के बारे में। तो कल्चरल अवेयरनेस भी स्टोरीज फैलाती हैं। अगर हम गोनू झा की बात करें, तो गोनू झा की बिल्ली और गोनू झा वाली स्टोरी जो है वो आपको मिथिला के कल्चर के बारे में भी बात करती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो अपने कल्चर को शेयर करते हैं, अगर हम ये बात करें तो। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक एटीट्यूड है जो स्टोरी बेस्ड लर्निंग देती है। मैंने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, these are the very much a part of our टीचिंग लर्निंग, और ये स्टोरी बेस्ड इसमें कहीं ना कहीं से ये आती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक बच्चों में डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी पार्ट है, और ये सब स्टोरी टेलिंग से कैरेक्टर डेवलपमेंट, राइट। इफ योर
So if you are watching a movie, TV serials, or any kind of story, if you are reading, and you are getting a good characters there in that, so each and everyone is willing to be like that, कि मैं बनूंगा. गांधी जी के जब हम उनकी अपने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा कि उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी और उन्होंने एक प्ले देखा था. क्या कोई बताएगा कौन सा प्ले? उसको उन्होंने सारा क्रेडिट दिया कि उनके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था. ठीक है, वो उनका टर्निंग पॉइंट क्या था? टाइप करिए कोई. अच्छा, कोई नहीं आ रहा है. चलिए, कोई नहीं. राजा हरिश्चंद्र एक प्ले था, और राजा हरिश्चंद्र प्ले जिसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट उस स्टोरी ने महात्मा गांधी के जीवन में कहा. प्रमोद कोरा सर ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र थोड़ा लेट से आया, तब तक मैंने बता दिया. जो ठीक है सर, थैंक यू. तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. राइट. मैं अभी बताया कि गांधी जी को एक स्टोरी ने कितना इन्फ्लुएंस, ठीक है ना. और काले गोरे का भेदभाव एक ऐसा भी था जो एक स्टोरी है, जो स्टोरी लोगों के बारे में बताती है और वो जीवन में उनका आता है. की फीचर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग पेडागोजी में हमने अभी देखा कि और क्या क्या फीचर्स हैं. एक तो नैरेटिव बेस्ड लर्निंग है. क्या करेंगे? स्टोरी को नैरेट करेंगे. लेसन्स आर टॉट थ्रू द स्टोरीज रेदर देन रेयरली हम जाके लेक्चर देने से अच्छा है क्या करेंगे, ठीक है ना, हमको जो सिखाना है उसके एब्स्ट्रैक्ट को लेंगे और किसी न किसी के स्टोरी में इम्बेड कर देंगे. स्टोरी में इम्बेड करेंगे मतलब वही जो मम्मी करती है. मम्मी क्या करती है? शहद लेती हैं चम्मच में और कड़वी वाली टैबलेट्स को कूट करके उसमें मिला करके दे देती हैं. ऑब्जेक्टिव तो है कि वो कड़वी वाली दवाई दे देनी है. कड़वी वाली दवाई ही देना एक बड़ी ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको स्टोरी वही शहद वाली जगह पे लेके आनी है और आपको वो इम्पोर्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग फ्रैक्शंस थ्रू द स्टोरी अबाउट डिवाइडिंग अ पिज्जा अमंग फ्रेंड्स. फ्रैक्शन पढ़ाना है तो फ्रैक्शन पढ़ाना है तो पिज्जा का हम अगर एक पिज्जा डिवाइडिंग स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे पिज्जा को डिवाइड करेंगे और उसके सारे सेक्टर्स के बारे में हम समझाए इसको, तो फ्रैक्शन भी समझा सकते हैं. अगर हम सर्कल पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम सेक्टर्स भी समझा सकते हैं. तो ये सारी चीजें स्टोरी के थ्रू कर सकते हैं. इमोशनल कनेक्शन. Stories sparks the curiosity and emotions which enhance the retention. Students remember better than they feel the concept. तो इमोशनल कनेक्शन अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे के पास रिमेम्बरिंग जो होगी वो रहेगी, वो रिटेंशन रहेगा क्योंकि वो कनेक्टेड फील करेगा, टॉपिक से कनेक्टेड फील करेगा. ठीक है. जैसे राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्यवादी होने की बात को एकदम टच कर गया, इम्बेड हो गया महात्मा गांधी के जीवन में और जीवन पर्यंत वो रहा. तो वो उस तरह से कोई भी स्टोरी अगर कॉन्सेप्ट को बच्चा अगर फील कर लेता है तो वो उसके पास रह जाएगा हमेशा के लिए, वो इमोशनल कनेक्शंस रहेगा. देन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ और इमेजिनरी कॉन्टेक्स्ट इन द स्टोरीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिलेट थियोरी टू प्रैक्टिस. अब क्या है कि जो कई थियरी है हम अपने स्टोरी में अगर थियरी को प्रैक्टिकली हम विजुअलाइज करा रहे हैं कि देखो देखो ऐसा ऐसा है और उसने ये किया. एक सिनेमा देख रहा था जिसमें वो कुछ केमिकल्स को मिलाता है और वो केमिकल्स को मिला करके और किसी जानवर पर छिड़क देता है और वो जानवर इंसान बन जाता है. ठीक. तो वो ऐसा मतलब एक स्टोरी के थ्रू ये कहता है जो थोड़ी अनरियलिस्टिक है, लेकिन रियलिस्टिक कई चीजें हम लोग देख सकते हैं स्टोरीज के थ्रू. बच्चों को बता सकते हैं कि आप साइंस की कई ऐसी चीजें हैं जिनको स्टोरी के रूप में हम बता सकते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे के पास रह जाएगा. हम लोग को पता ही है कि जब ग्रेविटेशन हम पढ़ना शुरू किए थे तो हम लोगों को न्यूटन वाली वो कहानी सुनाई गई कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और फिर वो सेब गिर गया. फिर उनके अंदर एक दिमाग में आई बात कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया. ये सारी स्टोरी जो है तो
ये कहीं ना कहीं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हर आदमी के जीवन में डाल दिया। और इसका बेसिक चीज था कि वो न्यूटन के साथ उसको जोड़ देना और एक स्टोरी के साथ जोड़ देना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, बट कॉन्टेक्स्ट स्टोरी के रूप में आई, तो ग्रेविटेशन के आगे हम लोग ग्रेविटेशन में एक इंटरेस्ट आ जाता है कि अच्छा अच्छा फिर इन्होंने क्या सोचा, फिर क्या निकाला, इस तरह की चीजें आई। तो एक कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करती है स्टोरी टेलिंग पेडागोजी। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओके, आप स्टोरीज को बीच में पॉज कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं उनके पास। वही मेथोडोलॉजी जो विक्रम बेताल में बेताल करता था। बेताल पॉज होने के बाद विक्रम से सवाल करता था कि अभी इसके आगे क्या होगा, तुम बताओ, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो अब एक्टिव पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखना होगा, नहीं तो ये आपकी स्टोरीज अगर वन साइडेड रह गई, इन्वॉल्व नहीं रहा, तो हो सकता है कि वो सो रहा हो। ओके, स्टूडेंट्स में रिटेल, एडॉप्ट और क्रिएट देयर ओन स्टोरीज। और स्टोरी आपने जो बताई आप उनको दे सकते हैं कि इसी तरह की कुछ और तुम बताओ, तुम सुनाओ। तो ये एक उनके अंदर क्रिएटिविटी और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, वो सारी चीजें हम अपॉर्चुनिटी के रूप में दे सकते हैं और वो बहुत ही इन्वॉल्व कर देंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी यूज, ओके, इट इज इफेक्टिव देयर इन साइंस, मैथ, हिस्ट्री, लैंग्वेज, वैल्यू एंड द लाइफ स्किल। ये इतनी सारी चीजें स्टोरी बेस्ड हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लैंग्वेज पहले से ही रहता है कि लैंग्वेज में बहुत सारे लिटरेचर्स रहते हैं, तो बट लिटरेचर स्टोरी बेस्ड होते हैं। हिस्ट्री भी अपने आप में स्टोरीज है, अब उनको स्टोरी के रूप में हमको पढ़ाना है। जो पास्ट रियल एग्जिस्टिंग स्टोरीज हैं उनको हमको पढ़ाना होता है। बात रह गई कि हमको साइंस, मैथ्स, ओके, इनके लिए थोड़ी सी स्टोरीज क्रिएट करनी होती है। बिकॉज हालांकि एनसीईआरटी ने जूनियर क्लासेस में ऐसा किया है, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जूनियर क्लासेस ने ऐसा कुछ किया है। चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोरी टेलिंग इन साइंस, साइंस में कैसे स्टोरी टेलिंग को यूज किया जाता। ठीक है, एक एग्जांपल है आपके सामने, एक केस के रूप में दिखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम a scientist hosts a group of noblemen, all right, and offered them sweets in iron plates. देखो एक स्टोरी मैंने क्रिएट किया है बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनको ये सारी टॉपिक समझाने के लिए। ठीक है ना, तो iron plates, but they refused to eat and demanded sweets in a copper plate. As a scientist was not having copper plates at home, he asked some time from them and went back to his science laboratory and poured 150 ml of CuCO4. Okay, तो ये कॉपर सल्फेट डाल लिया 150 ml solution into a beaker. Fix the copper strip as the anode, positive charge terminal, and the iron plate as the cathode, negative charge, and connected there to the wire. Immerse both of the solution without touching each other. Kept the 2-3 centimeter apart. दोनों को अलग अलग रख दिया 2-3 सेंटीमीटर उसी लिक्विड में, and switch on the DC supply, the low voltage 3 to 6 volt. A gentle steady current was desired. थोड़ा इसीलिए ये 3 to 6 volt दिया गया, जो लैब में 1 से लेके 3 तक काफी एडेक्वेट होता है इन सारी चीजों को। ओके, आफ्टर 40 minutes he came with the brand new copper plates and served the guest. The guest became very happy and thanked the scientist and went for their houses. अच्छा, इस स्टोरी में एक स्टोरी में मैंने क्या पढ़ा दिया, आप टाइप करिए क्या पढ़ा दिया मैंने इसमें, बच्चे को क्या पढ़ा दिया। मैं वेट कर रहा हूं रिस्पॉन्स के लिए। ओके, साइंस तो पढ़ा दिया, लेकिन इसमें साइंस के कौन सी टॉपिक मैंने डील कर दी। अगले स्लाइड में वो बताएगा, केमिस्ट्री बता दिया। तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स के नाम हमने बता दिए। अच्छा चलिए, एलिमेंट्स तो है इसमें। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके, ये लक्ष्मी करके कुछ आया ईमेल के लिए, बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये सब, वेरी गुड आया।
अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। हेमंत जी ने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये पार्थ सारथी ने भी बताया इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरी गुड, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग साइंटिस्ट ने कर दिया, यस, उमाकांत पांडे जी ने कहा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया वो, और वो कॉपर प्लेट्स लेकर के आ गया। ओके, केमिकल रिएक्शन से यहाँ पर बच्चे को समझा दिया। वेरी गुड। तो ये इतनी सारी चीजें आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ भैया इसमें केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जो इसमें आपने कॉपर सल्फेट यूज किया, फिर वो वोल्ट क्यों डीसी वोल्ट रखा, ये सारी चीजें इसी स्टोरीज में हम इनको उलझाए रहेंगे, इस साइंटिस्ट वाली कहानी और उसके गेस्ट की कहानी में, और बाद में ये पता खुलेगा। अब बच्चे को असाइनमेंट क्या दे सकते हैं इस छोटी सी स्टोरी में, कि which scientific method did the scientist use to deposit the layer of copper on his iron plates into the copper? And let's discuss electroplating. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बच्चा एकदम से समझने के लिए तैयार है। इस स्टोरी से वो इंगेज हो गया, और ये रिटेन भी करेगा कि वो क्या क्या किया था स्टोरी में, वो साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था, वो 40 मिनट तक का जो उसके प्रोसेस था। तो सॉरी ये सारी चीजें हम साइंस में कर सकते हैं इस तरह अपने चीजों को। स्टोरी टेलिंग इन मैथमेटिक्स, अब देखिए मैथमेटिक्स में द किंगडम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर पढ़ाना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे पढ़ाएंगे मैथ्स टीचर। तो देखिए मैथ्स टीचर पढ़ाने जा रहा है, एक स्टोरी से शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो इन अ फेरावे लैंड देयर वाज अ मैजिकल किंगडम ऑफ नंबर्स। तो मान लीजिए एक राज्य था, नंबरों का राज्य। ओके, इन दिस किंगडम लिव्ड a proud and strong family called the Squires. Squires नाम का एक बड़ा ही प्राउड फैमिली रहता था। One was the youngest prince, सबसे छोटा जो राजकुमार था वो 1 था। 4 was his brother, 9, 16, 25, and many were all the part of this Squire family. Squire family में और भी लोग थे, 1, 4, 9, 16, 25 और भी बहुत सारे। They all had one common secret. Each of them was born when a number multiplied itself. कहानी को ऐसे बताएंगे कि इनका जन्म ही हुआ था जब नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तब जाके इनका जन्म हुआ। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 जन्म लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 का जन्म हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 का जन्म हुआ, और इसी तरह हम बाकी को बताते चले जाएंगे। 4 4 हुआ तो 16 हो गया, 5 5 हुआ तो 25 हो गया, इसी तरह बता। The people of a kingdom loved the Square family because they were perfect and strong. अब ये परफेक्ट थे, साफ सुथरे दिख रहे थे, इनके आगे पीछे कोई झोल झाल नहीं था, बहुत क्लीन थे। तो they were strong, standing alone. Everyone said a square is always made when number marries itself. और एक लाफ्टर छूटेगा क्लास में, जैसे ये बात छोड़ेंगे कि स्क्वायर जो है वो हमेशा अपने ही नंबर से मैरी कर लेता है, शादी उसने खुद ही से कर लिया है। तो जब नंबर खुद से अपनी शादी कर लिया तो वो बन गया स्क्वायर। तो ये एक लाफ्टर भी आएगी और ये रह जाएगा उनके दिमाग में। अब आगे चलते हैं, इसी का एक रिवर्स है कि द मिस्ट्री ऑफ द रूट्स। अब अगर स्क्वायर तो हम समझा दिए स्टोरी से, अब रूट समझाना है। बट वन डे ट्रेवलर्स कम टू किंगडम आस्किंग वेयर डिड दिस स्क्वायर कम फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा कि भैया ये स्क्वायर आए कहां से है, ठीक है ना, अब बताओ ये स्क्वायर कहां से आएंगे। एंड हु आर देयर पेरेंट्स, कौन है इनके पेरेंट्स। द वाइज ओल्ड विजार्ड, वहीं पर एक जादुई बुजुर्ग आदमी था, उसने बताया आई नो दैट यू मस्ट मीट द स्क्वायर रूट्स। चलो हम इनके रूट्स बताते हैं कहां से आए। और उस जादूगर ने बताया कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 वाज 3, और उसने समझाया कि 3 को 3 ही से मल्टीप्लाई करने से 9 आया था, इसीलिए 3 उसका रूट है। अगर 9 एक स्क्वायर नंबर है तो उसका जन्म जो हुआ है उसका पेरेंट जो है वो 3 है, क्योंकि 3 ही 3 से मल्टीप्लाई या 3 से मैरिज किया तब जाकर के 9 का जन्म हुआ। उसी तरह उसने समझाया कि 4 ने 4 से मैरी कर लिया और ये इनकी मैरिज क्या एक प्रोडक्ट आया 16, इसी तरह 5। और दैट विजार्ड सेड दिस ऑल।
Okay, the roots were like keys that unlocked the mystery how the squares were born. अब ट्विस्ट है इस स्टोरी में, एक ट्विस्ट है इन द टेल, बट नॉट ऑल द नंबर्स इन द किंगडम्स वर लकी. विजार्ड ने बताया कि सारे लोग लकी नहीं थे. सम नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 6, 7, 8 they were not perfect square. They could not find whole numbers. इनके कोई whole number पेरेंट्स नहीं मिले. ये लोग अनलकी थे. And their roots were very messy. बहुत गंदा है. इनको एक देखो छतरी के अंदर रहना पड़ता है, रूट के अंदर रहना पड़ता है, और जब इनको हम चेंज करते हैं, they are never being alone. They are coming with a very much point, and then sometime they are being very much repeated. Some numbers are being repeated after decimals, the recurring, and all sort of mess is there with this. So they are called irrational roots. All right, they are not having a perfect root like that. Okay, ये इतने handsome या इतने lucky नहीं थे जितना कि स्क्वायर नंबर था. ओके, तो इस तरह के हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स अपने बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं. ये सब एग्जांपल्स हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं इनको अपने तरीके से. ओके, स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश ग्रामर. अब इंग्लिश ग्रामर में एक स्टोरी टेलिंग है. अगर एक्टिव पैसिव लैंग्वेज पढ़ाना है कैसे करेंगे? ओके, सो थैंक यू कमलेश जी, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है. थैंक यू फॉर दैट अप्रिसिएशन. ओके, स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश ग्रामर हम चलते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन ए स्मॉल विलेज. ओके, थैंक यू सब लोगों को. मैं लास्ट में सबके ये ले लूंगा आपके फीडबैक्स. Once upon a time, the small village, there lived a boy named Arjun. अर्जुन नाम का एक बच्चा था. One day he found what? A shining pen under a banyan tree. चलिए, अब उसको एक बरगद पेड़ के नीचे चमचमाती हुई पेन मिल गई. A pen was magical. अब पता चला कि इसमें मैजिकल है. It could change the way sentence were written. ठीक है ना, कोई सेंटेंस लिखे तो उसको चेंज कर देता था ये पेन. करा कि if someone wrote in an active voice, the pen instantly change into the passive voice. जैसे कोई एक्टिव वॉइस में लिखता, पेन उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देता. And if the written in a passive, it flipped back there to the active. पेन में इतनी जादू थी, एक्टिव लिखो तो पैसिव कर दे, पैसिव लिखो तो पैसिव. ओके, क्यूरियस अर्जुन began the experimenting. उसने सोचा कि चलो ये मिल गया है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें. ठीक है, अर्जुन kicked a ball. जैसे उसने लिखा अर्जुन kicked a ball, the teacher appraised the Arjun and Arjun celebrated his discovery. ये पेन ने सीधे सीधे चेंज करना शुरू कर दिया. ओके, इसने एक्टिव वॉइस में ये सारी चीजें लिखी और यहाँ पर पेन ने क्या कर दिया? पेन ने लिखा कि the ball was kicked by Arjun. The Arjun praised by the teacher and the discovery was celebrated by the Arjun. ये सब पेन ने कर दिया, जादू. ठीक है ना, अर्जुन ने लिखा एक्टिव और पेन ने कर दिया पैसिव. अर्जुन opened the pen and found a small chip which was programmed for English grammar. अब क्या हुआ कि देखो, अब यहाँ पर हम साइंस की ओर ले गए हैं. सुपरस्टिशन से हटा करके या फॉल्स बिलीव के लिए स्टोरी में क्या डाल दिया? साइंस. वो जो पेन को खोला तो उसमें उसको चिप मिला. And when his father learnt about the magic pen, he became annoyed. और पापा को जब लगा कि उसको मैजिक पेन मिला है तो वो गुस्सा गए. क्यों गुस्सा है भाई? एक तो मिली हुई चीजों को लौटा देने का है और तुमको लेके आया. Then he went back there to the banyan tree and returned the pen. That pen was found. A person was searching there. It's a lost pen. एक आदमी मिला जो ढूंढ रहा था और उसको उन्होंने पेन लौटा दिया. Then the person was a robotics engineer था वो, जो पेन उसको बनाया था. He promised that he will give training to Arjun to make robots. और पेन लौटाने के एवज में वो इतना खुश हुआ और ये प्रॉमिस कर दिया कि अर्जुन को वो रोबोटिक्स सिखाएगा जिससे बहुत अच्छे अच्छे रोबोट्स बनेंगे. तो पेन एक रोबोटिक्स पेन था जो एक्टिव को पैसिव के चेंज करके प्रोग्राम कर रहा था. तो यहाँ हम साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनी स्टोरी के साथ एक्टिव पैसिव के चीजों को हम बच्चे को
इन्वॉल्व कराना है, इंगेज कराना है उसको सारी चीजें, तब हम धीरे धीरे उसको उसके प्रोसेसेस की आखिर प्रोग्रामिंग कैसे की गई होगी, कैसे एक्टिव को पैसिव में बदला होगा। इसका मतलब प्रोग्रामर ने उसके अंदर कुछ ग्रामर पढ़ाए होंगे, ग्रामर डाले होंगे अपने प्रोग्राम्स में, और वो आप जब बताएंगे कि वो क्या क्या प्रोग्रामिंग किया होगा, तो आप आराम से एक्टिव टू पैसिव के मेथड्स पढ़ा सकते हैं। एंड गिवन अ मैजिक चार्ट देयर टू, अब एक चार्ट आप दे सकते हैं, बना सकते हैं कि देखो इसी तरह का एक चार्ट था, जो चार्ट इस इंजीनियर ने अर्जुन को दिया, और उसके बाद से अर्जुन खुद एक्टिव पैसिव और पैसिव टू एक्टिव को करने के लिए आसानी से वो करने लगा। ये सबका जाना पहचाना सा होगा, ये वाली चीजें हमारी एनसीईआरटी पहले से यूज करती है, दैट अप्रोच देयर टू द एनसीईआरटी टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग पेडागोजी। हाँ, एकदम वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस। थैंक यू सविता सिन्हा जी। ये देखिए, ये तो आपको किताबों में मिलेंगे, है ना। ये बहुत ही जाना पहचाना सा है ना, बूझो पहेली, ये तो सबको याद होंगे, जो लोग एनसीईआरटी किताब पलटते हैं तो उनको। और ये बूझो और पहेली बात बात में क्या करते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ाते समय टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखिए भाई, बहुत बड़े रिसर्चर लोग इसको ढूंढ करके बनाते हैं, और ये कितने अच्छे तरीके से अगर हम इसको एग्जैक्ट क्लास में उतार पाए ना, तो बड़ा मजेदार होगा। हम क्लास में भी बूझो और पहेली के थ्रू अपने लेसन्स को बना सकते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मेरे को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। हिमांशु सर, राधिका मैम, कितना टाइम बचा हुआ है? Sorry, 15 minutes. ओके, 50 मिनट्स। ऑलराइट, हाँ तब तक तो मैं कर लूंगा। तो these I'm talking about the Bujo and the Paheli. So Bujo Paheli, these all researchers there in NCRT, they have created some, they have discussed some issues there through the Bujo and through the Paheli, and then they are creating interest there to the topic. तो हम बूझो पहेली तक लिमिट नहीं रह सकते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी से हम बूझो पहेली को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक बेहतर टीचर होने के लिए बूझो पहेली वाली आइडिया को हमको एक मिला है कि हाँ चलो, एक बूझो पहेली नाम की एक शुरुआत हमको दे दी गई है। हम अपनी स्टोरीज को बूझो पहेली के थ्रू कितने बेहतर तरीके से क्लास में डिलीवर कर सकते हैं। अब देखिए कि बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है ना, एक बूझो रख दिया कैरेक्टर्स के लिए। पहेली वांट्स टू नो व्हाई द बॉडी कैन नॉट मेक अ फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक अ प्लांट। अब हम क्लास में रख सकते हैं कि देखो भैया, बूझो से तो स्मार्ट तुम ही लोग हो, मेरे बच्चे बूझो से ज्यादा स्मार्ट हैं। अब मेरे बूझो से ज्यादा स्मार्ट जो बच्चे हैं वो बताएंगे, ठीक है ना। अब बताओ तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक पे, और इस तरह से हम इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और बूझो पहेली को अपने क्लास में जिंदा कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम साइंस को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बूझो पहेली यूजुअली साइंस में है। अब यहाँ देखिए, बूझो और पहेली का ये डिस्कशन है इस चीजों के रूप में, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ कि किस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाएगी। बूझो सेज once his grandfather told him that his wheat field was spoiled by a fungus, ठीक है। He wants to know if fungi causes disease also. अच्छा, गेहूं की फसल फंगस ने बर्बाद कर दिया, तो बोले कि क्या ढेर सारे ऐसे फंगस होते हैं क्या कि जो डिजीज क्रिएट करते हैं? पहली told him that many fungi like yeast, mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals, including human. Some fungi are also used for the medicines. अब इतने सारे इंफॉर्मेशन इन दोनों की बातचीत के स्टोरी के रूप में समझा दिया, ओके। तो ये रिसर्च बेस्ड स्टोरी टेलिंग है मेथड, जो साइंस की कुछ कुछ चीजों को और बहुत सारी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर जन्म दे दिया और वो अब इंफॉर्मेशन का उनको एपेटाइट क्रिएट कर दिया। इस स्टोरी ने इंफॉर्मेशन एपेटाइट क्रिएट किया, उनको भूख लग गई कुछ जानने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, कौन सी डिजीज होती है ह्यूमन बीइंग में जो फंगस से होती है? तो अब फंगल इन्फेक्शंस के बारे में उनके दिमाग में आने लगेगी, हाँ कि भाई कुछ डर्मेटाइटिस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फंगल इन्फेक्शन से क्रिएट होती है। तो ये बूझो और पहेली
एक कोई ऐसा नहीं है कि उसमें पेज को रंगने के पर्पस से एनसीईआरटी ने बनाया। उन्होंने इसी पेडागोजी को ध्यान में रख करके बनाया कि हाँ भाई, स्टोरी टेलिंग पेडागोजी, दैट इज वेरी इफेक्टिव पेडागोजी दैट टू टीच द some tough concept even there to through the स्टोरी टेलिंग मेथड्स एंड थ्रू दिस कम्युनिकेशंस। तो मुझे लगता है कि आप इसको अब थोड़ा सीरियस देखेंगे और यूज करेंगे कि आप अपने बूझो और पहेली को कैसे इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्टोरीज में, अपने टॉपिक्स में। आपको क्या क्या करना चाहिए एक एक्टिविटीज के रूप में? क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी फ्रेम करिए, ठीक है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पढ़ाइए कि कैसे वो सारी चीजों का आपस में वो मिले और उस तरह से भोजन मिला, सूरज ने क्यों रोशनी देना शुरू कर दिया, प्लांट्स को कहाँ से मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें स्टोरी के रूप में अगर बताएं तो उनको ज्यादा याद रहेगा। ओके, वेट एंड मास अगर पढ़ाना है इसके बारे में, टाइम एंड टेंस है, सॉइल कंजर्वेशन, इतने सारे टॉपिक है, भाषा साहित्य, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब टॉपिक्स को अभी चूंकि ये ऑफलाइन होता है तो मैं इस पे एक्टिविटी कराता, बट आप कोशिश करेंगे और हो सके तो हिमांशु सर और राधिका मैम को शेयर करेंगे कि आपने कुछ स्टोरीज बनाई और अपने टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाया जो टॉपिक आपको पढ़ना है। एक चीज और मैं सोच रहा था, एनसीईआरटी की रिसर्च बेस्ड मैं प्रेज करता हूँ। जो सोशल साइंस टीचर है वो 9th में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट सब्जेक्ट वाज नॉट वेरी मच नॉन देयर टू द चिल्ड्रन एंड दैट इज इकोनॉमिक्स। 9th में उनको एक इकोनॉमिक्स की नई बुक मिल जाती है। So how this NCERT they thought to introduce a subject, a concept there to the child, and then they started there through a story. And the first chapter is the story of a Palampur, right? Palampur, right? The village Palampur. मुझे लगता है कि जो एसएसटी के लोग होंगे उन्होंने ये चैप्टर पढ़ाया और उस स्टोरी का पर्पस ही था इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन को उनके करीब ले जाना, बिकॉज दैट सब्जेक्ट वाज वेरी न्यू, द concept, the terminology that they were going to deal, that one was a very much new. So they created one imaginary village or hypothetical village और उस village के थ्रू सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उन्होंने गांव में डाल दिया। आप उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने तरीके से, कुछ कैरेक्टर्स और ये डाल करके, ठीक है। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो मैं उस कैरेक्टर्स के कुछ नाम रखे थे, जो वहाँ की घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का मेरे पास नाम था, ठीक है। जो वहाँ डेयरी फार्म चला रहा था उसका नाम था, हमने लोकलाइज कुछ नाम रखे और उनके कुछ फनी तरीके से उनको कोशिश किया कि बच्चे पालमपुर और उसके दो जो छोटे और एक शाहपुर था और ये सारे शेरपुर शाहपुर ऐसे करके कुछ जो नाम थे उनको कैसे बच्चे समझ पाए, ठीक है। तो क्या है कि द पर्पस ऑफ स्टोरिंग दैट टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। देखिए बेसिक चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़ानी थी कि प्रोडक्शन से है और ये सारी चीजें हैं, तो कैसे इनको समझाया जाए, ठीक है ना। और पूरी इकोनॉमिक्स के जो फाउंडेशन है वो एक गांव की स्टोरी से इंडिया के बच्चों के दिमाग में भरने के लिए ये एक चैप्टर बनाया गया और उसके बाद से जो बाकी के कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने और अदर कैरेक्टर्स डाले। रूरल कैरेक्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में भी आपको मिलेंगे कुछ कुछ, दिलजीत और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो केस के रूप में उनको बताए गए और केस स्टोरीज के रूप में है, वो केस स्टडीज नहीं, केस स्टोरीज है। और स्टोरीज के रूप में इकोनॉमिक्स की बुक उठा लीजिए, पूरी बनाया हुआ है उस तरह से। अगर हम उस तरीके से पढ़ाना शुरू करें स्टोरी के तरीके से तो हम बेटर तरीके से रिलेट करके पढ़ा सकेंगे एंड देन विल गेट अ मैक्सिमम आउटकम। ये देखिए ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा डाला और रामकली वाली कहानी इकोनॉमिक्स में। ये डाला और रामकली मतलब सीधी सी बात है, ये स्टोरी है और ये स्टोरी है, इनके बीच का कॉन्वर्सेशन है और इससे टॉपिक इज बीइंग ट्रांसफर और इससे बड़ा अच्छा लगता है। दैट संस्कृत में अगर किसी को, तो संस्कृत में तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। कोयल कौवे की कहानी को आप इस श्लोक से जोड़ सकते हैं कि प्रिय वाक्पदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब ये समझाना है तो कोयल और कौवे की जो कर्कश आवाज और मीठी आवाज की कहानी से इस चीजों को हम इस श्लोक को उनको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जहां बुद्धि है वही बल है। और ऐसी कहानियां हैं, आप अलौकिका पंडिता जाइए,
आप उठा लीजिए, कई स्टोरीज हैं जिसमें आप है ही संस्कृत में श्लोक काफी कठिन होते हैं, तो श्लोक को भी हम और व्याकरण को हम कहानियों के थ्रू समझा सकते हैं। और बाकी की चीजें तो कहानियों के रूप में होती ही है संस्कृत में, जिसमें अलौकिका पंडिता विष्णु शर्मा की पूरी वो चीजें ही आपको मिल जाएंगी। पंचतंत्र की कहानियों से संस्कृत पढ़ाया जाता था, और लेकिन श्लोक को और ग्रामर को आप ऐसे रख सकते हैं। अब हम एक चीज आपके सामने छोड़ते हैं, ये हमारा लास्ट सेशन होगा, क्योंकि एक अर्ली डिजिटल स्टोरीज, अब स्टोरी टेलिंग आज तो आ ही गई है सबके पास, डिजिटल मॉड्यूल्स हैं क्लासेस में, स्मार्ट क्लास है, वो स्टोरी टेलिंग को बहुत प्रमोट करते हैं विजुअलाइज फॉर्म में। लेकिन जो सोशल मैसेज देना था और कुछ चीजें सिखानी थी, तो हमारा दूरदर्शन भी इसकी कोशिश करता था। इसमें बहुत लोगों को नॉस्टैल्जिया फील होगा अगर ये आप इसको शुरू करके देखते हैं, तो शायद ये प्ले हो जाए। याद आ गया? भाषा अनेक है, भाषा अनेक है। कैसे इस स्टोरी के थ्रू ये ये digital अनेक story क्या के है through कैसे दीदी? समझाया जा रहा है? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा, बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक मैं इसको यहीं रोकता हूँ, आप ककर जरूर के इसको सुनेंगे। तारे भये इस तरह से ट्विटर आप सबको आता था ठीक बहुत से सारी समझाओ चीजें, ना दीदी। और आज तो डिजिटल स्मार्ट हो गया है। उस चैलेंजिंग दौर में जब 2D एनिमेशंस थे, ये सारी चीजें चल रही हैं। देखो देखो एक गिलहरी। खत्म हो गया, इसलिए पीछे पीछे अनेक गिलहरी। thank you to be the part of this session. Now over to ma'am and Himanshu sir, if Himanshu sir is available here. Hello. Thank you. Wonderful training session. Thank you, ma'am. Thank you. People are praising. Thank you, everybody. It's very Alright, easy I'm to know taking how a the things minute. came through story way. They can connect to the classroom. That's very good. And all the participants already attendance link has been posted. Please take it. If you got any queries, please put it in the chat box. Amalesh Yes, sir will see yes. it and give the answer to you. Well, so Ajit Kumar is telling, sir, for the first time I have enjoyed the session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shivangi ji, Sunil Kumar ji. Thank you. Thank you that you are praising. And oh, the last clip was a very much. I said that people will feel that nostalgia on Doordarshan one. That I searched because I also feel that good. So, all right. Thank you, you. Amalesh sir. Almost all are praising you. That means they could understand well, and it was very interesting session. I'm also I know that within 1 hour, making all the concept into the minds of the teacher participants, very tough job, and all the participants, and including all educators. Thank you very much. We are saying only one day only left to say bye to present Yes.
And on that case, wish you all an advance Happy New Year. And I hope the Amlesh sir will join in the next year also with us. Sure, sure. Thank you. Whenever you will order me, that very time I'll be always available. I'm very much thankful to you, Himanshu sir, CV Singh sir, that you people are believing in me and giving me assignment. And I always try my best to fulfill the expectations of yours. All right. I'm very much Unfortunately, I'm on grateful. the way. I'm coming from training. I was in CBSE training session. I'm just coming Okay. from there after taking the All training. right. That is Okay. It's why good that. okay, anyway, all the participants and you can leave Amresh sir. Thank you very much once again. Happy New Year on behalf of the entire All participants the team. people, all right. Thank you for your these appraisals. All right, and so many messages I got. I'm very much delighted and very much happy that you people are praising this session. Thank you very much. Thank you, and enjoy your this year-end days. Celebrate and welcome this new year. Best wishes there from me. Thank you, and namaste. The background, Rapu. Chap bag.